हेलो एवरीवन। वो रेस्पिरेशन का फर्मेंटेशन वाला पार्ट रीड करने का बाकी था, तो वो कर लेते हैं फटाफट। ज़्यादा पार्ट है नहीं, छोटा सा ही है, उसको अपन निपटा लेते हैं। ठीक है। अ, सब लोग रेस्पिरेशन चैप्टर खोल लेंगे अपने एनसीईआरटी का। मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि वो दिखता भी नहीं है अच्छे से, और एनसीईआरटी तो है ही सबके पास। पेज नंबर 226, चैप्टर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. Where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? Do all foods give the same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get their energy from? And microorganisms, for their energy requirements, do they eat food? You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected. But in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food, मतलब their own macromolecules, glucose, amino acids. By the process of photosynthesis, they trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose, and starch. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. नहीं, अपने को पता है मिजोफिल सेल्स है ना, लीव्स में जो मिजोफिल सेल्स है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। C4 की बात अलग है, C4 में बंडल शीत में होता है, लेकिन इन जनरल मिजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट रहता है। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर की लेयर्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। Hence, even in green plants, all other organs, tissues, and cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all non-green parts. Animals are heterotrophic, that is, they obtain food from plants. Page number 227 पे आएंगे. Directly, as in herbivores, और indirectly, as in carnivores. Saprophytes, मतलब क्या है पता है तुमको? Like fungi are dependent on dead and decaying matter. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP. Photosynthesis of course takes place within the chloroplasts, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria. ठीक है, mitochondria is also only in eukaryotes. ठीक है, the breaking of the CC bonds of complex compounds, carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy is called respiration. अभी के लिए तो अंडरलाइन भी करके रख सकते हो, लेकिन तुमको पता है क्या करना है। कोई भी चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं तो चैप्टर होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, है ना। तो मैंने तो तुमको वैसे 100 पेजेस की अलग से एक बुक कॉपी बनाने को ही बोला था, जिसमें एनसीईआरटी लाइंस करके उस कॉपी का नाम रहेगा, और हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस तुम उसमें लिख के रख सकते हो। उससे क्या फायदा होगा कि एक तुम्हारे पास 100 पेजेस की कॉपी रहेगी, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ना, पूरे नोट्स पढ़ना एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है। या जैसे एक्चुअल नीट एग्जाम नागपुर में होती है, तो तुम चंद्रपुर से नागपुर जब ट्रैवल कर रहे हो तो उन 3 घंटों में पढ़ सकते हो। 2 बजे एंट्रेंस रहता है, 2 बजे एंट्री मिलती है, तो उसके पहले का जो सुबह का समय रहता है उस समय तुम पूरे नोट्स तो पढ़ नहीं सकते हो।
तो उस समय वो 100 पेजेस की कॉपी तुम्हारे काम में आएगी। फटाफट फटाफट पूरे इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुमको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये मैं तुमको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। नहीं बनाई होगी कॉपी तो अभी भी बना लो। 100 पेज का एक रजिस्टर खरीदना है बस। एक चैप्टर के क्या 2-3 पेजेस तो भरते होंगे आई थिंक, इंपॉर्टेंट लाइंस के, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। तो वैसा भी कर लेने का। एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करके वहां पर क्यू लिख देने का, क्यू कि इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो इस लाइन को भी अंडरलाइन करके रख लेंगे। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है ये। इसके ऊपर क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है, लेकिन डेफिनेशन है तो इंपॉर्टेंट चीज है। The compounds that are oxidized during the process are known as respiratory substrates. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acids like alpha ketoglutarate, oxaloacetate can be used as respiratory substances in some plants under certain condition, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ जो रहता है वो मोर देन 1 रहता है, ये भी पता है अपने को। During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrates is not released freely into the cell or in a single step. It is released in a series of slow, stepwise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by एक सेकंड ना, थोड़ा फास्ट हो गया शायद। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हेंस क्यों बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो एक झटके में रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीडेशन के समान। ये ऐसा क्वेश्चन भी था शायद डीपीपी में या टेस्ट में कहीं तो भी था, है ना। देखो एनसीईआरटी की लाइन है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट और कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized in a cell, obviously, हाँ, not outside the cell, body के बाहर नहीं। Hence ATP acts as the energy currency of the cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. Do plants breathe? Well, the answer to this question is not quite so direct. Yes, plants require O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of O2. देखो रेस्पिरेशन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो करते ही है प्लांट्स ऑब्वियसली, पर एनसीईआरटी पूछ रही है कि ब्रीदिंग करते हैं क्या वो अपने समान, ऐसा वाला प्राणायाम वाला, लंग्स के थ्रू एयर अंदर खींचना बाहर फेंकना, ये करते हैं क्या, ये पूछ रहा है एनसीईआरटी। तो बोल रहे हैं कि भाई अब वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेलुलर रेस्पिरेशन तो करते ही है, तो हेंस प्लांट्स डेफिनेटली हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स नहीं है उसके पास, लेकिन बाकी कुछ सिस्टम तो है ना उसके पास भी। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. Again stomata तो सबको पता है, lenticels सिर्फ 12th वाले समझ पाएंगे, अपन ने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में lenticels पढ़ा है ना। lenticels का फोटो भी भेजा था मैंने ग्रुप पे 12th वालों, इफ यू रिमेंबर, है ना। और उसमें वो क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स रहते हैं, ठीक है। देयर आर 11th वालों तुमको भी भेज दूंगा मैं lenticels का फोटो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्टेम पे दिखता है, किसी भी प्लांट के स्टेम पे दिखता है, ऐसे नोड टाइप दिखता है, ऐसा स्टेम जो बाहर की लेयर है उसकी फट गई है ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि गड्ढा हो गया है स्टेम में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा प्रोट्रूडिंग गड्ढा, ट्यूमर सॉर्ट ऑफ। तो एक्चुअली लेंटिसेल रहता है, उसमें लिविंग सेल्स रहती है कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा ये 3-4 लाइनें ही लिख लेनी है अपने को, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजनिंग भी बन सकता है, ठीक है। There are several reasons why plants can get along, मतलब वो चल जाता है उनको विदाउट लंग्स। किसी ने तो भी एक बार लाइव क्लास में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी था कि वो स्टोमेटा बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ से अंदर आता है। तब मैंने बोला भी था कि वो आएगा एनसीईआरटी के स्टार्टिंग का, जब अपन रीडिंग करेंगे तो उसमें आएगा वो, ऐसा बोला भी था मैंने। अभी परसों के दिन की बात है, शायद प्रियेश ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद प्रियेश ने पूछा था
ठीक है, तो देखो अभी उसका आंसर मिलेगा। जब मैं वो स्टोमेटा वाला बता रहा था ना, तब उसने क्वेश्चन पूछा था कि रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो फिर ब्रीदिंग के लिए उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि वो आंसर मिलेगा डिफ्यूजन से होता है ब्रीदिंग उनमें। ऐसा उनको सिर्फ स्टोमेटा के लिए, सिर्फ स्टोमेटा उनको जरूरी नहीं है, लेंटी सेल्स भी है उनके पास। तो अब ध्यान से सुनेंगे कि वो ऐसे कैसे विदाउट लंग्स, विदाउट नोज, विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम जिंदा रह लेते हैं, कैसे रह लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, पहली बात, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। बढ़िया। अपने को कैसा है, अपने पास सिर्फ लंग्स है, अपनी किडनी, अपना लीवर, अपना स्प्लीन, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, टेस्टिस, ओवरी, हैंड्स, लेग्स, जितने भी ऑर्गन्स है सब लंग्स के भरोसे पे है ऑक्सीजन मिलने के लिए। प्लांट्स का वैसा नहीं है, लीव्स अपना ब्रीदिंग अलग करेंगे, स्टेम अपना ब्रीदिंग अलग करेगा, ऐसा। ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। ठीक है, तो अपना अपना देख लेते हैं, वो तो उनको ऐसे किसी एक ऑर्गन की जरूरत नहीं है। सेकंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू। उनका रेस्पिरेशन का रेट काफी कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि उनको लोकोमोशन नहीं करना है, सर्कुलेशन नहीं करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है ना, हियरिंग नहीं है, विजन नहीं है, टॉकिंग नहीं है, मतलब साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, टच का सेंसेशन नहीं है, स्मेल का सेंसेशन नहीं है, टेस्ट का सेंसेशन नहीं है। तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि एक्टिविटीज क्या, उनको खड़े ही तो रहना है बस एक जगह पे और फोटोसिंथेसिस करना है, और क्या करना है उनको। जो एनर्जी लगती है वो बस ग्रो होने के लिए लगती है, ग्रो होने के लिए बस। और क्या करते हैं वो? फ्लावरिंग करने के लिए। ठीक है, फ्लावरिंग कंसिडर कर लो, ग्रो होने के लिए और फ्लावरिंग, फ्रूट फॉर्मेशन, बस। और कोई उनको जिंदगी में कुछ पर्पज ही नहीं है। तो एक तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम है। ठीक है, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू। Only during photosynthesis are large volumes of gases exchanged and each leaf is well adapted. Each leaf is well adapted. ठीक है, हर एक लीफ अपना अपना अलग अलग ब्रीदिंग कर रही है, उसको अपने समान लंग्स की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बींग्स के समान या इन जनरल एनिमल्स के समान। ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी मतलब पूरी इंडिविजुअल है उनके हर एक पार्ट। ठीक है, ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज, availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell। ये भी एक चीज है। वैसे ये ऑब्वियसली दिन के समय होगा, सिर्फ रात के समय नहीं होगा, है ना। अपने को पता है रात के समय कोई भी प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए फोटो मतलब लाइट जरूरी है, तो सिर्फ वो दिन के समय ही हो सकता है। बट ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तीसरा रीजन, थर्ड, ये तीनों रीजंस अपने को अंडरलाइन करके वहां पर क्वेश्चन और AR, ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में लिखनी है। AR स्टैंड्स फॉर असर्शन रीजनिंग, एज वेल एज वो जो 100 पेजेस की कॉपी की मैं बात करता हूं उसमें भी अपने को लिख लेने का है ये तीनों पॉइंट्स। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट्स में भी उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है वो ज्यादा नहीं रहता है। क्यों? क्यों? Because each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant। थोड़ा सा तकलीफ स्टेम में ही होगी क्योंकि उसमें बाहर कॉर्क की लेयर रहती है जो डेड है, बट अदरवाइज सरफेस एरिया उनका वो टेंशन नहीं है, मोस्टली नियर टू द सरफेस ही रहता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू में आस्क, देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लीव्स के लिए तो सही है, स्टेम के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, है तो अपने मन में विचार आएगा ही। तुम तो बोलोगे कि भाई लीव्स के लिए सही है लेकिन स्टेम के लिए तुम ये कैसे बोल सकते हो। बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स? क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ कॉर्क है, बराबर है ना। 12th वालों को समझेगा, वैसे 11th वालों को भी पता ही है। स्टेम का जो बाहर का पोर्शन है सबसे, उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क बॉल बनता है, बॉटल का कॉर्क बनता है, डेड टिश्यू रहता है, वो 9th में भी पढ़ा ही होगा तुमने। ठीक है, तो इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। वही लेंटिसेल्स जो स्टोमेटा के साथ ऊपर लिखा हुआ था। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। इंटीरियर यानी हार्ट वुड, हाँ 12th वालों।
Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots. Packing loose रहता है ताकि air को भी अंदर मूव होने के लिए जगह मिलते रहती है, which provide an interconnected network of air spaces. ठीक है, सिंपल चीज है एकदम. The complete combustion of glucose which produces CO2 and H2O as end products yields energy, most of which is given out as heat. देखो, most of it is given out as heat. ठीक है, most of it is given out as heat. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 686 किलो कैलोरीज होती है. 686 किलो कैलोरीज. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. और अपन एटीपीज कितने बनाते हैं? 38 एटीपीज बनाते हैं. 38 एटीपीज, एक एटीपी में 7.1 किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है. उसको राउंड फिगर में अपन 7 ही कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर 7. ठीक है, एटीपी को 38 की जगह राउंड फिगर में 40 कंसिडर कर लो. तो 40 इंटू 7, एक एटीपी में 7 किलो कैलोरीज. तो 40 इंटू 7 कितना हुआ? तो 280. 38 एटीपीज मतलब, चलो उसको भी राउंड फिगर करके 300 कैलोरीज पकड़ लो, उसको भी राउंड फिगर कर लो, खुश हो जाओ. 300 किलो कैलोरीज की एनर्जी अपन एटीपी के फॉर्म में बना रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. लेकिन एक्चुअली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में रहती है 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. 686. तो अपने को आधे से भी कम एनर्जी मिल रही है 38 एटीपीज. मतलब बाकी की एनर्जी कहां गई? तो बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है. ठीक है, इसलिए अपने जो ब्रीथ आउट जो एयर करते हैं अपन, वो गर्म रहती है ना, है ना, गर्म रहती है वो एयर. तो उसका रीजन ये है, हीट के फॉर्म में अपन रेस्पिरेशन करते तो अपना बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है. ठंडी के टाइम पे अपने को ज्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा सबस्ट्रेट्स खर्च होते हैं, इसलिए अपने को भूख ज्यादा लगती है. खाना हम ठंडी के समय पे ज्यादा खाते हैं. उसका रीजन ये है. ठीक है, क्योंकि हीट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज होती है. अगर मैंने ये वीडियो के बाद एक पीडीएफ नहीं भेजा ना, तो मेरे को बस मैसेज कर देना कि सर आपने पीडीएफ में रेस्पिरेशन और हीट से रिलेटेड कुछ तो भी एक पीडीएफ भेजने की बात की थी करके. कोई भी बस मेरे को एक मैसेज कर देना. वैसे मैं भेज ही दूंगा, अगर मैं भूल गया तो मेरे को याद दिलाना. तुमको एक जबरदस्त पेड़ों की सुपर पावर वाला पीडीएफ भेजूंगा. एक पेड़ है जो पोलर एरियाज में ग्रो होता है, एकदम ठंडी वाले एरिया में, और वो हीट जनरेशन करता है खुद के बॉडी में. वो तो वो ईटीएस के थ्रू ही करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू. तो कैसे करता है उसका लेनिंजर में मस्त एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो भेजूंगा मैं तुमको. अगर मैं भूल गया तो याद दिला देना. एनीवेज, कहाँ पर थे अपन? तो C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus energy. ठीक है. If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये वही बोल रहा है कि अगर अपने को ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ये अपने को पूरी हीट के फॉर्म में खर्च न करते हुए अगर उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो उसका एक ही उपाय है कि ग्लूकोज को एक झटके में जला के CO2 और H2O नहीं बना देने का. उसको स्टेप वाइज फॉर्मेशन में, स्टेप वाइज तरीके से ऑक्सीडाइज करने का. धीरे 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 और फिर कुछ कुछ स्टेप्स में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि तुम एटीपी फॉर्म कर सकते हो, है ना. धड़ाम से सीधा ग्लूकोज को आग में डाल दिया तो एक झटके में CO2 और H2O बन जाएगा. अरे तुम सूखी पत्तियां अगर जला रहे हो तो जो धुआं निकल रहा है, जो आग निकल रही है, वो धुएं में क्या है? CO2 है. सीधा तुमने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया. और जो आग निकल रही है जिससे तुम खाना पका रहे हो, वो क्या है? वही हीट एनर्जी है. एक झटके में हो गया. उसको फिर तुम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. अल्टीमेटली जो आग लगाने के बाद हो रहा है वही अपने बॉडी में भी हो रहा है. ठीक है, तुम किसी लीफ को खाओ, पालक की लीफ को खाओ या पालक की लीफ को जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन बात एक ही है. ठीक है, बात तो एक ही है, रिएक्शन तो एक ही है. ठीक है ना.
समझ में आ रहा है ना। बस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि स्टेप वाइज मैनर में हो रहा है। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, डीएचएपी पीजीएल, फिर डीएचएपी को पीजीएल में कन्वर्ट करो, पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल, फिर 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर पायरुवेट। ये इतना करने के बाद भी सिर्फ आधा ही ऑक्सीडेशन हुआ है, अभी तक CO2 और H2O नहीं बना है। उसके बाद लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में CO2 बनेगा, और फिर उतना बड़ा ETS होने के बाद एंड में कहाँ जाके ऑक्सीजन आएगा और H2O बनेगा। कितनी लंबी खींच रहे हैं अपन उस प्रोसेस को। सीधा पालक का ये लिया, पत्ती लिया पालक की, और उसको माचिस की तिल्ली लगा दी, तो एक झटके में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है वो ग्लूकोज, है ना। लेकिन अपने को एक झटके में खर्च नहीं करना है, अपने को खाना नहीं पकाना है उसके ऊपर, है ना, या सेकना नहीं है ठंडी में खुद को गर्मी लाने के लिए, अपने को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज मैनर में उसको कर रहे हैं, ग्लूकोज को CO2 और H2O में कन्वर्ट। ठीक है, ओके। सो हाउ दिस इज डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। क्या मस्त एक्सप्लेन किया, एकदम सही है। तो इसको स्टेप वाइज मैनर में कैसे करते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as products. The combustion reaction requires oxygen. Combustion reaction मतलब वही सीधा आग लगा देना कागज को. But some cells live where oxygen may or may not be available. Bacterial cells पता है तुमको, अनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के कर लेते हैं. Can you think of such situations where O2 is not available? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms are facultative anaerobes, while in others the requirement for anaerobic condition is obligate. ये भी पता है तुमको, obligate anaerobes and facultative anaerobes ऐसे दो प्रकार के anaerobic बैक्टीरिया रहते हैं. Obligate मतलब compulsory, facultative मतलब optional. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. So now let us see glycolysis. The term glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting. The scheme of glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Meyerhof and J. Parnas. इसलिए इसको Embden, Meyerhof and Parnas pathway भी बोलते हैं and is often referred to as EMP pathway. ठीक है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस में जो C4 पाथवे है ना, उसको Hatch and Slack पाथवे बोलते हैं. Hatch and Slack, HATCH, Hatch and SLACK, Slack, Hatch and Slack pathway. इन अनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. उसके बाद तो क्या सीधा वो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, है ना. आगे लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, वो सब तो कुछ होगा ही नहीं अनेरोबिक बैक्टीरिया में. ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन. देखो पार्शियली, अभी तक पूरा CO2 और H2O तैयार नहीं हुआ है ना, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. In plants, this glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis, और पेज नंबर 229 पे आएंगे, from storage carbohydrates. Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. लिखेंगे इसको, अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, सुक्रेज भी बोलते हैं नो डाउट, इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं. एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase. This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. है ना, फ्रुक्टोज अगर आया तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना दो, ग्लूकोज अगर आया तो उसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना के फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना दो. अल्टीमेटली फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट तो बनने ही वाला है. ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस तो सेम है, मतलब फ्रुक्टोज आया हो या ग्लूकोज आया हो, डजेंट मैटर. The various steps of glycolysis are depicted in figure 14.1. In glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose. है ना, ये 10 steps अपने को अच्छे से मालूम है. अपन ने तो एंजाइम के नाम, कौन सी रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, स्ट्रक्चर्स के साथ अच्छे से पढ़ा हुआ है. फिर भी अगर किसी स्टेप में कुछ क्वेरी होगी तो पूछेंगे, बिना डरे, बेझिझक एकदम. ठीक है, आई विल नॉट स्कोल्ड यू. कुछ भी क्वेरी होगी तो पूछ सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम फ्रीली पूछने का. ठीक है,
Anyways, while studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization, that is ATP energy or synthesis of ATP, or in this case of NADH plus H plus takes place. ये सब अपन ने अच्छे से गिन के रखा है, अपने को ये सब चीजों का टेंशन नहीं है. ATP is utilized at two steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate, and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate. अरे वाह, एनसीईआरटी ने सही लिखा है. एक सेकंड, एनसीईआरटी ने नहीं गलत लिखा है. बिसफॉस्फेट रहेगा ना, क्योंकि अलग अलग कार्बन पे है तो बायफॉस्फेट बोलना चाहिए. और सेम कार्बन पे अगर रहेंगे दोनों फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स तो फिर अपन डाइफॉस्फेट बोलेंगे. अलग अलग कार्बन पे तो बायफॉस्फेट बोलेंगे. तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट रहना चाहिए एक्चुअली नाम. द फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-phosphoglyceraldehyde. We find that there is one step where NADH2 मतलब ही NADH plus H plus, हाँ एक ही बात है, is formed from NAD plus मतलब ही NAD. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. Two redox equivalents मतलब उतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट. ठीक है, two redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PgAl and transferred to a molecule of NAD. Phosphoglyceraldehyde is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into bisphosphoglyceric acid. तो इन्होंने डाइफॉस्फो बोला इसलिए DPGA लिखा है, अपन 1,3-bisphosphoglyceric acid बोलते हैं. The conversion of DPGA मतलब 1,3-bisphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. Can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? सब कर चुके हैं अपन, ये सब अपने लिए बहुत इजी है अभी, तो ये सब स्किप मारो. Pyruvic acid is then the key product of glycolysis. What is the metabolic fate of, पेज नंबर 230 पे आएंगे, pyruvate. This depends on the cellular need. There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, and aerobic respiration. Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2, however, organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires oxygen supply. ठीक है. फर्मेंटेशन वाला पार्ट अपन ने नहीं पढ़ा था. In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. ये अपन ने स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से पढ़ा हुआ है, कहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, क्या होता है ना. अगेन सेम चीज बोलूंगा, नहीं याद होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, उस समय समझ में आ गया होगा, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, पूछेंगे मेरे को. The steps involved are shown. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. The steps involved are shown in figure 14.2. In animal cells also, like muscles during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. The reducing agent is NADH2, which is reoxidized to NAD in both the processes. रीजन ही वही है ना अनेरोबिक रेस्पिरेशन का, फर्मेंटेशन का, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो NADH2 जो बने वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाके वापस NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो वापस NAD कैसे बनेगा, और वापस NAD अगर नहीं बनेगा, रिसाइकलिंग नहीं होगा, तो अगला ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना. इसलिए वो NADH2 को वापस NAD में रिसाइकल करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, एसेंशियल है. इसलिए तो फर्मेंटेशन होता है, भले उसके कारण तकलीफ हो. अपने को लैक्टिक एसिड के कारण मसल स्पैजम्स होते हैं, मसल पेन होता है, और ईस्ट जो होता है वो तो अल्कोहल के कारण मर जाता है, बिकॉज अल्कोहल इज अ पॉइजन, है ना, बताया था मैंने तुमको. लेकिन फिर भी उसको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो फिर NAD रिसाइकल नहीं हो पाएगा. ठीक है.
In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. Also the processes are hazardous. ये देखो, यही तो बता रहा था मैं. Either acid or alcohol is produced. What is the net ATPs that is synthesized? That is, calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. पता है तुमको ये सब. सिर्फ 2 ही ATPs का फायदा है क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में तो कुछ बन नहीं रहा है. ATP वगैरह जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATPs बने वही है बस, है ना. Yeasts poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. ये मैंने फर्मेंटेशन पढ़ाते वक्त भी बताया था, अभी 5 सेकंड पहले भी बोला था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है. 13% से ज्यादा अल्कोहल हो गया ईस्ट के कल्चर में, ईस्ट के सराउंडिंग में, कि ईस्ट सेल्स मरने लगते हैं. What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? 13% से ज्यादा रह ही नहीं सकता. फिर जो अल्कोहलिक बेवरेजेस रहते हैं, विस्की, वाइन वगैरह, उसमें मोर देन 13% अल्कोहल कैसे रहता है? 13% से ज्यादा अल्कोहल वाला सोल्यूशन तुम तैयार ही नहीं कर सकते. वो भी तो ईस्ट से ही बनाते हैं ना, वाइन कंपनी वाले भी. तो वो क्या करते हैं, वो जो 13% का अल्कोहल का सोल्यूशन है उसका डिस्टिलेशन करते हैं. अब डिस्टिलेशन क्या है वो मत पूछना, वो नहीं बताऊंगा. 9th की किताब खोलना और देख लेना अगर डिस्टिलेशन नहीं पता होगा अभी भी तो. ठीक है, डिस्टिलेशन करके वो उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं. बट 100% अल्कोहल तैयार कर पाना इम्पॉसिबल है. लैब्स में, मतलब केमिकल लैब्स में, केमिस्ट्री के लैब्स में एब्सोल्यूट अल्कोहल रहता है विच इज थियोरेटिकली कॉल्ड एज 100% अल्कोहल, लेकिन वो 100% अल्कोहल नहीं रहता है. वो 98% वगैरह कुछ तो भी, या 99% रह सकता है, उससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता. क्योंकि तुम कितना भी डिस्टिलेशन कर लो, थोड़ा तो पानी उसमें बच ही जाएगा. ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, और नेचुरली तो 13% से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल तैयार होना पॉसिबल ही नहीं है. हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? अभी बताया मैंने, डिस्टिलेशन. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है 12th में, उसमें वो सब दिया हुआ भी है. What then is the process by which organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a larger number of ATP molecules needed for cellular metabolism? In eukaryotes, these steps take place within the mitochondria and this requires oxygen. Aerobic respiration is the process that leads to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and releases CO2, water, and a large amount of energy present in the substrate. This type of respiration is most common in higher organisms. We will look at these processes in the next section. तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट था वो अपन ने पहले ही रीड कर लिया है. ठीक है, बाय.